Today is Friday, 8th August, and this is the free weekly current affairs oral test. All right, name the primary global maritime choke points. List the primary global maritime choke points. Pooja. Sir, Gibraltar, Malacca Strait, Bab el Mandeb, Hmm. and Bostredon, Hmm. and एक सेकंड, क्या? Bostredon. बॉस्ट्रेडन कहाँ पर है ये? So I'm unable to recall the एक names. लाइन में चलो ना, इफ यू आर विजुअलाइजिंग. अभी तो मुझे ये पता चल रहा है कि ऐसे Bosphorus. हाँ, कि रटे हुए इंफॉर्मेशन से बोल रही हो. एक बिल्कुल ही ईस्ट में, फिर एक बिल्कुल ही वेस्ट में जा रहा है. वो मैप दिमाग में होना चाहिए किस किस पॉइंट से, तब तुमको ओशियानिक रूट्स भी याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगी. अक्षय. Sir, no, sir, I'm not aware of this question, sir. राजश्री. Sir, the Strait of Malacca, हम्म. Bab el Mandeb, ओके. Panama Canal, Gibraltar, and Suez Canal. देयर आर 3 मोर. प्रसून. So one is Cape of Good Hope. हम्म. एक बॉस्फोरस हो ही गया, और एक और बचा है यार. The ये तो बहुत Hormuz. न्यूज़ है. हॉर्मूज. हाँ, ठीक है. तो दीज आर द मेन प्राइमरी चोक पॉइंट्स. इसके अलावा कुछ सेकेंडरी भी दिए हुए हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी का जो नॉर्दर्न टिप है वहां पर दे रखा है. तो इनको जो भी रीजन्स न्यूज में है उनको तो इम्पोर्टेंट हो जाता है. जैसे साउथ चाइना सी इम्पोर्टेंट है, ये व्लादिवोस्टोक वाला ऊपर जापान वाला एक इम्पोर्टेंट हो जाता है. हालांकि जियोपॉलिटिकली नई न्यूज में बहुत रहता है, बट इट इज द मैप इज शोइंग दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट. तो इसको एक बार देख लेना. एंड बस एक ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वाला है, और एक ऊपर स्वीडन. स्वीडन है कि डेनमार्क है? स्वीडन वाला है. ठीक है. ओके. एशिया कप is related to which sport? Asia Cup is related to which sport? Manisha, Sir, hockey. where is it being played? Rajgir, Bihar. UPSC can give a statement like India has never won the Asia Cup tournament so far. True or false? True Sir. बोलेंगे कि false बोलेंगे? Everyone can say no. Thumbs up is true and face emoji is false. Yes, such a statement is de fact. It should be false only. Okay. Is Pakistan participating in 2025 Asia Cup? It is not. Then there were some terms in news: standing deposit facility, liquidity adjustment facility, marginal standing facility, फिर regular bank rate वगैरह is usually in news. Just get the meaning and use of these concepts. What is the meaning and how are they used? What is their purpose? इसके ऊपर एक conceptual question बन सकता है. इवन सीमिंगली फैक्चुअल क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे कुछ आ जाए 3-4 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन, इंक्लूडिंग नंबर्स, इंक्लूडिंग यूज ऑफ, मतलब कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट भी हो जाए और फैक्चुअल स्टेटमेंट भी उसमें मिक्स हो सकते हैं.
किसी एक एग्जाम में यूपीएससी के आ भी रखा है ऐसा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस ऑन दीज टर्म्स। डेडिकेटेड मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। Microplastics are what is the definition? What is the size of microplastics? Srishti? Sir, from 1 micrometer to 5 millimeter. ठीक है, ध्यान रहे नैनोमीटर वगैरह में नहीं जाता है, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर तक होते हैं। बायोचार as a term has been asked in PYQs. We had a beautiful article on biochar. It can be asked as a full-fledged multi-statement question also. Okay, so what is biochar, Akshaya? So biochar is it's charcoal basically, which is rich in carbon dioxide, and it is obtained from agricultural residues and from the organic municipal solid waste. Sir. Okay. So the tone of usage of biochar is very wide. It can be used ranging from as a carbon sink to all different positive uses are there. ठीक है, तो biochar का tone is all positive. There is nothing negative with biochar. The name itself has bio in it. Okay, so it's all positive. It has got nothing negative. There are two important byproducts of biochar mentioned in this article. What were they? Pooja? So one is syngas and bio oil. ये सिनगैस कुछ तो न्यूज में था, या तो न्यूज में था या तो इट्स गिवन इन आवर एनसीईआरटी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अब ये कहाँ था, बट एनीबॉडी रिमेम्बर सिनगैस का क्या सिग्निफिकेंस है? सर इस पे PYQs भी है शायद। पीवाईक्यू भी है, कुछ तो याद आ रहा है मेरे को, मतलब सिनगैस इज समवेयर कनेक्टेड मोर कॉन्क्रीटली विद आवर सिलेबस किसी तरीके से। क्या है ये एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सृष्टि? हाँ sir, like Sahil has commented, it is carbon monoxide plus hydrogen. It is also used in production of brown hydrogen. ओके, कोई पीवाईक्यू भी आया है इस पे? मतलब ऐसे PYQ में सिन गैस करके ऐसे आया था, मेंशन्ड है, हाँ में था, हाँ। तभी वो स्ट्राइक कर रहा है बिकॉज सिनगैस। तो अब सिनगैस ये बायोचार से भी रिलेट कर रहे हैं सिनगैस को, तो थोड़ा डिटेल भी देख लेना सिनगैस का पर्पस क्या है एंड कैसे प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है इसका। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं चाहिए, बस ब्रॉड किस थीम में इसको यूज होता है, किस किस फील्ड में किस किस एरिया में यूज होता है। ओके कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स जो हैं दिल्ली में, उनको सिक्योरिटी कौन सी फोर्स देती है? अनिकेत? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखा है एडिशनल पर्सनल वर दिस थिंग सैंक्शनड, तो इट इज पॉसिबल दैट अदर फोर्सेस आल्सो माइट बी देयर और इनके कुछ ट्रूप्स हों जैसे CISF के। तो कल को अगर स्टेटमेंट में CISF है एंड अदर फोर्सेस आल्सो आर देयर तो वो ट्रू ही हो जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इट्स सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट डजंट डिजर्व कि हम जाके उसको एक्स्ट्रा रिसर्च करें, बट CISF इज श्योरली देयर। बाकी मेंशन होगा तो ट्रू बोल देना, नहीं मेंशन होगा तो भी CISF है तो ट्रू ही है वो स्टेटमेंट। ठीक है, ओनली CISF करके दे रहा है तभी जाके गलत होगा वो, ओनली CISF जितना तो बहुत डिफेक्ट हो जाएगा इतना अनइम्पोर्टेंट टाइप के टॉपिक के लिए। ठीक है सर इसमें ओनली CISF ही है, ये जो एडिशनल CISF पर्सनल लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि CISF यूजुअली ये सेक्रेटेरिएट को मैन करता है अभी भी, लेकिन ये एडिशनल बटालियन रेज की गई है इसके लिए। तो अगर ओनली है तो फिर वो स्टेटमेंट में ओनली CISF नहीं देगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CISF ऐसे दे देगा, स्टेटमेंट का टोन सॉफ्ट ही रखेगा। ठीक है, सुगम्य भारत अभियान किससे डील करता है?
साहिल? तो डिसेबल फ्रेंडली इंडिया, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं बिल्डिंग्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम है। अब नाम ऐसा है कि इसको मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, मीनिंग एकदम डायरेक्टली नहीं हम बोल पा रहे हैं कि क्या काम करता है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम से हम नहीं बता पाएंगे किससे रिलेटेड है ये स्कीम। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। ठीक है, अब दुनिया में इसका तो हाल ऐसा हो गया, आई डोंट नो हु टेक्स ट्रम्प सीरियसली। देयर आर सम पीपल, some politicians in the world who are not taken seriously. तो India is the largest importer of Russian oil in the world. ये स्टेटमेंट आ सकता है। फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये जय? सबसे ज्यादा चाइना इंपोर्ट करता है सर। रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, देन इंडिया हो जाता है। देखो सबसे ज्यादा कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया से ज्यादा कोई करता है, बस इतना पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, यूपीएससी डजंट एक्सपेक्ट यू टू नो हु इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड। इंडिया नहीं है, बस ये स्टेटमेंट दे देगा इंडिया है क्योंकि टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में रशिया का शेयर इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए, 35 से 40 के बीच में रेंज करता है। ठीक है, अब ये सस्ते रशियन ऑयल के चक्कर में पूरा देश टैरिफ झेल रहा है, और पहले ये कुछ पॉइंट परसेंटेज में होता था रशिया का शेयर इंडिया के क्रूड इंपोर्ट में, 0.2-0.3 से उठ के 35% तक पहुंच गया। लेकिन हमको तो चवन्नी भी सस्ती नहीं हुई तेल के भाव में, है 100 रुपये पहुंचने वाला है। तो यार थोड़ा जमी सी नहीं बात। India does not import any gas from Russia. India does not import any gas, मतलब LNG from Russia. Should be a false statement, है ना, बहुत डिफैक्ट हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। अगर ऐसा दे देता कि पाइपलाइन के थ्रू नहीं करता, हाँ वो वुड हैव वर्ड है। ठीक है, लेकिन डज नॉट इंपोर्ट एनी गैस, इनको तो ये ट्रम्प तो पीछे इसीलिए पड़ गया ना कि रिलायंस वाले के जहाज पकड़े गए गैस लाते हुए, चोरी करके ला रहे थे कहीं से चोरी छुपे, तो कुछ तो गैस इंपोर्ट होता ही होगा। यही अप्रोच हमने उसमें लगाया 25 में, जो क्वेश्चन आया 2025 में, निकल लिथियम वाला, निकल और इंडोनेशिया वाला जो कॉम्बिनेशन था। ऐसा रिसोर्सेज जो होते हैं, और निकल इज फेयरली लाइक ऐसा अनइम्पॉर्टेंट टाइप का रिसोर्स है, इट्स नॉट लाइक आयरन ओर और उस टाइप से, इट इज इम्पोर्टेंट बट इट्स हर्ड ऑल्सो, बट इट्स नॉट लाइक वुड हैव हर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स। और उसमें सिर्फ ये लिखा था निकल और इंडोनेशिया, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट यस बोलेंगे। वी आर ओपन इकोनॉमी और वाइड है हमारा ट्रेडिंग बास्केट, तो बाय डिफॉल्ट ऐसी चीजों को जो फेयरली अनइम्पॉर्टेंट बोलेंगे तो उनको यस बोलने में फायदा है, नो बोलने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ओके फाइन, दैट्स इट। तो निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन कहां पर है? निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन, अनिकेत? यूक्रेन। अब ये निप्रो रिवर का भी नाम है एक, इसका पूरा कोर्स देख लेना। ठीक है, एंड आई थिंक वो चर्नोबिल जो है वो शायद इसी रिवर पे है, निप्रो पे ही है, ऊपर नॉर्थ में। ठीक है, निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन यूक्रेन में है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रसून? इंडस्ट्रियल रीजन है, की इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं इसको, की इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यूक्रेन सेंट्रल निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन। एक बार मैप में देख लेना, ये सेंट्रल का मतलब क्या है, क्या वो यूक्रेन के सेंटर एरिया में कुछ हो रहा है, या सेंट्रल मींस इंपॉर्टेंट एंगल से, इट्स अ सेंट्रल रीजन, नॉट
जोग्राफिकली, बट वैसे इट इज सेंट्रल टू देयर इकोनॉमी और समथिंग ऐसा। ठीक है, देख लेना कहाँ पर है ये। तीन चार इनके रीजन रहते हैं, एक डोनेस्क है, एक ये पेट्रोव्स्क है, इनके हैं रीजन तीन चार। यूक्रेन की मैपिंग बहुत डिटेल्ड में कवर है अपना मैपिंग वाला चैनल में, अब तो फ्री में दे रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन, देख लेना, टैग क्लिक करके सारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, इन्होंने क्लेम किया कि हमने एक नया गांव सीज कर लिया है ना। अब वो पता कैसे चल रहा है, अब इस फोटो में एक ये कुत्ता भी आ रखा है। अब ये फौजी कुत्ता तो डाउटफुल ही लग रहा है, तो ये सीम्स लाइक अ, क्या होता है वो, स्ट्रे डॉग। इनकी परेड में स्ट्रे डॉग आ गया तो गांव को वही होने का संभावना। दिस अ जोक, ओके, इसको सीरियसली नहीं लेना। इंडिया का यूएस से कितना डेफिसिट है बिलियन डॉलर्स में, बोलो, ट्रेड डेफिसिट। अक्षय, The $49.5 billion. एकदम धारदार जवाब है, गुड। 49, अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स का वो है। ठीक है, हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। सॉरी, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया से, सरप्लस, यूर राइट, सरप्लस। चाइना के साथ कितना है, साइज बोलो प्रसून। अराउंड 100। अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट में है हम। ठीक है, US has the largest trade deficit with India. Of all its trading partners, the largest trade deficit US has is with India. ये फॉल्स है, एक तो डीप फैक्ट हो गया। ठीक है, एक तो ये डीप फैक्ट है। डीप फैक्ट क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट का, सेंटेंस का पिवट जो है वो यूएस के ऊपर है, इसलिए ये डीप फैक्ट बनता है, इसलिए गलत है। दूसरी बात, इसको वुडा वर्ड भी बोल सकते हो टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, पॉलिटिक्स देखो, दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स है ना, अपना उल्लू सीधा करना होता है, बाकी जो हो। दे आर सेइंग कि तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो रशिया से डील करके, गाजा की कोई बात नहीं कर रहा, एंड ये खुद रशिया से सस्ते में माल ले रहे हैं, उसकी भी कोई बात नहीं करता। तो दैट्स हाउ लाइफ इज, कोई मतलब नहीं होता किसी को किसी से, अपना काम निकलने की बात होती है। सिटीजनशिप एक्ट किस साल में लागू हुआ था, ओरिजिनल वाला स्कंद? 1950. 55. As per this act, the union government should compulsorily register every citizen of India and issue identity cards to them. True or false? Yes. ठीक है, अब यूपीएससी इसको यूनियन गवर्नमेंट चेक करके स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, वो SFUW बन जाएगा, स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग। ठीक है, अगर यूनियन गवर्नमेंट करके दे रहा है तब तो ठीक है, तो फिर यही सुना होता है। फॉक्स हंट, स्काईनेट, ये सब क्या है? पूजा? So, these are Chinese police operations in different countries. तो अभी तक तो चाइना की परमानेंट मिलिट्री बेसिस पूछ रहा था, लेकिन इनके परमानेंट मिलिट्री बेसिस तो हैं ही, कुछ कंट्रीज में है। आई थिंक पीछे शायद आया भी था, किसी आर्टिकल में हाईलाइट करके भेजा भी हो, कुछ कंट्रीज में है भी। अब किन कंट्रीज में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें देगा वो डाइवर्ट करके हो जाती है बात, दैट्स ओके, लेकिन दे एग्जिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दैट दे एग्जिस्ट। और अब मिलिट्री बेस तो पक्का ही होगा, क्योंकि अगर इनके पुलिस तक हैं तो मिलिट्री तो पक्का होंगे फिर। ठीक है, मे नॉट बी इन दीज कंट्रीज, ऑफ कोर्स मे बी इन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन मिलिट्री तो होगा अगर पुलिस वाले इनके पुलिस स्टेशन भी बाहर हैं।
अब कुछ तो कंट्रीज में इनका एग्जांपल इन्होंने दे ही रखा है, मंगोलिया में, सर्बिया, हंगरी, ये तो कुछ तो कंट्रीज में तो वैलिड लीगल वाले हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड वाले हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में तो ये चोरी से चला रहे थे। यूके में या कहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने अपना थाना खोल रखा था इलीगल टाइप, शेडी, और ये कहते हैं हम पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस सर्विसेज देने के लिए, और ये होंगे इसके लिए कि कोई चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोले, वो ना बोले, उनको पकड़ के अंदर कर देते होंगे। तो ये नकली भी थाने चला रहे थे ये, तो बदमाश है बड़े। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज लॉन्ड्रोमैट? हाँ, बिहार वाला मामला। मनीषा, व्हाट इज लॉन्ड्रोमैट? Sir, it is an all-purpose financial vehicle which can be granted by either government or private entities. All-purpose financial vehicle. In what context was it in news recently? Prevention of Money Laundering Act. It was in the context of topic of money laundering. Okay, so laundromat जो है, it seemed like I read it very cursorily. To me, the tone was like negative. These were used for money laundering, but even if they are used for, ठीक है, for अगर प्रोटेक्शन भी करते हो किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, हालांकि अगर प्रोटेक्शन करते होंगे तो लॉन्ड्रोमैट जैसा तो नाम नहीं देंगे, वो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल सा नाम देना चाहिए। बट इफ द स्टेटमेंट इज टॉकिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, उसको ट्रू मार देना, चाहे पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव बोले, ठीक है, बस उसके कॉन्टेक्स्ट में है वो ट्रू है, दैट्स इट। ये तो नाम ही बड़ा वैसा सा है, आई मीन ये जो ऐसे दे लेते हैं ना, मजाक उड़ाने टाइप के नाम रख देते हैं कुछ हो, तो उस टाइप का लग रहा है। डजंट फील लाइक अ फॉर्मल नेम। क्राइम सिंडिकेट की बात कर, नेगेटिव ही है यार ये। The term money laundering is defined in detail in the PMLA Act. True or false? The term money laundering is defined in detail in PMLA Act. किसी को लग रहा है false होगा? जानवी, साहिल, राजश्री, साहिल जल्दी कर, इतना क्या सोच रहा है? हाँ, ट्रू ही होगा ना। डिटेल मैटर नहीं करता, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो लॉ है उससे डील करता है, तो लॉ डिटेल में ही तो करेगा डील, तो डिफाइन करेगा ही उसको। डिटेल इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। डिफाइन है कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग विच इज ट्रू, दैट्स इट। ज्यादा सोचना नहीं है। फिर प्रॉब्लम आती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन से, हाँ ग्रीन वॉश वाला, प्रॉब्लम आती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्टेक्स्ट में कर देते हैं, तब वहां वुड हैव हर्ड का हाई बन जाता है चांस। The burden of proof in the PMLA Act is on ED. The burden of proof in the PMLA Act is on ED. False है, false ही होना चाहिए, क्योंकि ED इतनी बदनाम हो रखी है। केस कन्विक्शन रेट इनका 4000 में से 10-12 ही केस इनके कन्विक्शन हो रखे हैं, 4000 बाकी जेल में डाल देते हैं। तो the only saving grace seems like इसमें शायद 7 साल है मैक्सिमम सजा, तो उस 7 साल तक वो रख लेगा अंदर, उसके बाद उसको छोड़ना ही पड़ता है, उस टाइप से कुछ तो है। तो अभी द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट वाला केस चल रहा है इनके साथ। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो टोन से हम ऐसे स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। टोन नेगेटिव है ईडी के कॉन्टेक्स्ट में, इस स्टेटमेंट के खिलाफ जा रही है टोन, जो हमको जनरली पता है, तो हम इसको फॉल्स बोलेंगे। तो नहीं भी पता किसी को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर और डिटेल में आ गया, मान लो सवाल अब की बार ईडी पे आ गया सवाल, एंड ये तो हम पिछले साल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पीएमएलए के ऊपर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन डिटेल आ सकता है। अब तो ईडी आ चुका है, जस्ट लाइक पीएनजीआरबी पे जैसे आ गया मल्टी स्टेटमेंट, वैसे अब की बार आ सकता है। पीएमएलए पे अगर आएगा तो अच्छा खासा डिटेल में जाके पूछेगा, एफआईआर हो सकती है कि नहीं, वो अटैच कर सकते हैं कि नहीं, किस किस कंडीशंस में, ये सब स्टेटमेंट टोन से हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट टोन
पता होना चाहिए किस टाइप की इंफॉर्मेशन। इसीलिए sometimes I just share the headlines also, if not the details, I just share the headlines to make you aware of the tone, किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में रहता है, उतने से ही ये स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इसमें काफी सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट वाली हाईलाइटेड है, सब पढ़ लेना। जापान की न्यूज में था अभी? एक ही बंदा क्या? जय? सर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में था, एक तो चेरी ब्लॉसम पहले हो गया, देन माउंट फूजी के ऊपर जो आइस कैप है वो भी मतलब लंबे टाइम तक नहीं हीट रहा वेव था वो। चल रही है, मतलब हीट वेव है, टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच गया? ये एग्जैक्टली नहीं पता सर। गेस मारो। 50 क्रॉस कर गया होगा। 50 तो बहुत ज्यादा बोल दिया यार, हाँ उतनी लेटीट्यूड पे, जापान का लेटीट्यूड हाँ, 50 कितना नहीं है? जाएगा। हाँ बहुत हाई 35 लेटीट्यूड। 40 हाँ 40 था, 35 40 आ क्रॉस गया, 40 पहुंच गया। इस लेटीट्यूड पे 40 पहुंचना भी कमाल की बात है। मतलब 40, तुम ये सोचो, अपना कंट्री में 40 होता है नॉर्मल, मतलब 42 43 44 तो दिल्ली वगैरह में हालत खराब होने लग जाती है, लू चलने लग जाती है। अभी थोड़े दिन में खबर आई जापान में लू चलने लगे, बुरा हाल है। पिछले साल यूके में प्रॉब्लम हो रहा था, रोड्स मेल्ट करने लगे थे, साइन बोर्ड्स मेल्ट करने लगे थे गर्मी की वजह से। तो अब जब मैपिंग करोगे, हाँ सराउंडेड बाय ओशंस है फिर भी, अब जब मैपिंग करोगे तो कंट्रीज का लेटीट्यूड देखने का आदत डाल लो, ठीक है? लगभग किस लेटीट्यूड में कंट्री होती है, टॉप बॉटम की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब तुम अगर सिर्फ जैसे हमारी तो क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से क्या है, एक 0 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, ये मेन लेटीट्यूड्स हैं, है ना? 0 30 60 कर सको 45 वाली देख लेना। तो जो मैप होगा आपके पास, उस मैप पे यू कैन इवन जस्ट एक छोटा मैप लेके उसके ऊपर लगा दो 0 डिग्री की एक लाइन लगा दो, 30 की 60 की, एंड लेट इट कट अक्रॉस कंट्रीज एंड जस्ट पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो उससे कौन सी लेटीट्यूड टच हो रही है किस कंट्री पे, लगभग क्या है, वो एक अंदाजा आ जाएगा। जस्ट इन केस कल को यूपीएससी किसी तरीके से पूछ ले, इससे तुम्हारा विंड्स टच हो जाएंगी, लेटीट्यूड से विंड्स पता चल जाएंगी, कौन सी विंड्स कहाँ जाती हैं, ओशन करंट्स का आइडिया लग जाएगा, ठीक है? कहाँ पे क्या आइसोथर्म्स का आइडिया हो जाता है, तो एयर मासेस वगैरह का, तो ये सब लिंक हो जाएगा। तो कौन सी कंट्री लगभग कहाँ कहाँ है। अब जैसे वाइल्ड फायर्स ग्रीस में चल रही थी पिछले साल बड़ा, अभी फ्रांस में वाइल्ड फायर की न्यूज आ रही है, जापान में हीट वेव्स की आ रही है, 1-2 साल पहले तो इधर ऑस्ट्रेलिया में बुरा हाल हो गया था वाइल्ड फायर से। तो देखो इनकी लेटीट्यूड, ऑस्ट्रेलिया का तो सदर्न मोस्ट टिप ही 30 डिग्री पे जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो भयंकर गर्म है, भूत बन जाता है वहां तो गर्मी का। तो लेटीट्यूड्स आइडिया हो जाता है इससे फिर, ठीक है? सी ऑफ जापान की भी बात हो रही है, देख लेना सी ऑफ जापान कहाँ है। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन? जमशेद? सर मोनाको। मोनाको, ठीक है। नाउ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मोनाको तुमको याद हो, अगर तो यूपीएससी ने मोनाको को सेंट्रल रख के दिया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है एल्डरली पॉपुलेशन वाला पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी शायद 24 में आया वो सवाल, या 24 में आया था शायद, वो इटली और डेमोग्राफिक्स रिलेटेड कुछ आया था, 24 में आया था, है ना? इटली आ गया था और शायद और एक का 2-3 कंट्रीज थे टोटल। तो पॉपुलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो वो सब ठीक है, यंग पॉपुलेशन है वो सब तो सुनते ही हैं, क्या नहीं सुनते? एल्डरली पॉपुलेशन। अब एल्डरली पॉपुलेशन सबको ऐसा लगता है कि जापान में सबसे ज्यादा है, तो यूपीएससी मोस्ट लाइकली विल से जापान हैज द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन। ये हो जाएगा टू इनवाइटिंग या स्टूपिडली सिंपल। मोस्ट लाइकली यूपीएससी शुड मेक दिस स्टेटमेंट, जापान हैज द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। लेकिन अगर जापान छोड़ के कोई भी और कंट्री दिया हाईएस्ट के साथ, तो फिर वो मोनाको ही देगा ऑफकोर्स। अब क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे काउंटर इंटुइटिव एंड ट्रू, ठीक है? एनीथिंग अदर देन जापान काउंटर इंटुइटिव एंड ट्रू।
सो यू आर सपोज टू नो ओनली अबाउट जापान, इंपॉर्टेंट कंट्रीज ही पता होने चाहिए, एंड जो काउंटर इंट्यूटिव टाइप इन्फॉर्मेशन, मतलब जो स्टूपिडली सिंपल टाइप इन्फॉर्मेशन है उसका एंगल पता होना चाहिए, अदर्स डोंट मैटर। तो कौन सी हाईएस्ट है डजंट मैटर, जापान हाईएस्ट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। पेट्रियट, पेट्रियट क्या चीज है? इट्स अ वेपन सिस्टम। व्हाट काइंड ऑफ वेपन सिस्टम इज इट सृष्टि? So air defense system. किस कंट्री का है? नहीं, इसराइल। पेट्रियट नाम से एक वाइब आ रही है ना, US. कैसा नाम है? यूएस। इंग्लिश नाम है तो चांस है कि कोई इंग्लिश कंट्री का हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश कंट्री इज यूएस ओनली, ठीक है। और ऐसे नाम इन्हीं के होते हैं, टाइटन, पेट्रियट, ये थोड़े इस टाइप के। यूक्रेन को वेपन्स देने में अभी कुछ कंट्रीज थी न्यूज में फंडिंग करने के लिए, वेपन्स की फंडिंग करने के लिए। वेपन्स की फंडिंग हो गया एक सीरियस मैटर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जियोपॉलिटिक्स, जनरल नॉर्मल जियोपॉलिटिक्स के एंगल से कौन सी कंट्रीज मेंशन्ड थी मनीषा? सर नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के ऊपर का जो ये जोलन पेनिनसुला बोलते हैं ना इसको, ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, तो ये कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन। बाकी वो फिनलैंड है, फिनलैंड है इधर, डेनमार्क दूसरे मतलब मेन इस पे है, मेनलैंड का पेनिनसुला है, जोलन पेनिनसुला का नॉर्वे एंड स्वीडन। अब ये ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस टोन पकड़ लो कि ये कंट्रीज हैं, ये एक्चुअली इनको वेपन्स में तो इनका बहुत सीरियस एंगेजमेंट है फिर यूक्रेन के साथ। कौन से अभी तक तो देश बस वैसे जनरल दे दिया, ह्यूमैनिटेरियन दे दिया, उसको हेल्प कर दिया, उस टाइप से मोटी मोटी हेल्प दे दी, लेकिन अगर वेपन्स के लिए फंडिंग हो रही है तो बात सीरियस हो जाती है। तो किस टाइप की कंट्रीज इसमें? ये तो छोटे कंट्रीज हैं तो फिर भी अभी तक मामला इतना वो नहीं है, बट जैसे ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज न्यूज में आएंगे, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इस टाइप के कंट्रीज आएंगे। अभी बात भी चल रही थी इनके पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने की बात चल रही थी, ट्रूप्स की। तो जब ये कंट्रीज अगर इनका किस लेवल पे कोलैबोरेशन हो रहा है, ये यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। Which state will be severely affected by Trump's tariff in the context of aquaculture? Akshay? Sir, Andhra Pradesh, sir. आंध्र प्रदेश। इंडिया फिलीपींस की कुछ खबर थी, व्हाट वाज दैट अनिकेत? सर नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं एक तो, उससे भी बड़ी खबर थी, प्रेसिडेंट हैज अराइव्ड इन इंडिया। उससे भी बड़ी खबर, बहुत मोटी बड़ी खबर है सृष्टि। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अभी इंडिया का फिलीपींस की। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ है, और ये मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ, वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन विच ऑल कंट्रीज इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, same lines with which all countries India has वो क्या बोलते हैं उसको, जो ये क्रिमिनल्स होते हैं उनको वापस भेजना, एक्स क्या वर्ड होता है वो मैं भूल गया, एक्सट्राडिशन, सॉरी एक्सट्राडिशन, मेरे को एक्सटॉर्शन आ रहा था दिमाग, एक्सट्राडिशन, ठीक है। अभी देखो पॉलिटिक्स का ये हाल हो गया है कि इस टाइप की चीजें सोचते हैं तो एक्सटॉर्शन टाइप वर्ड दिमाग में आने लगते हैं। एक्स्ट्राडिशन, किस किस देश के साथ हिंदुस्तान ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है, ये पूछ लेगा। जैसे यूपीआई पूछ लिया, देखो किस किस के साथ यूपीआई साइन हो रखा है, तो वैसे ही एक्स्ट्राडिशन पूछ सकता है। एंड अब इसके लिए ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो न्यूज में रहती हैं। बाकी ऑप्शन एनालिसिस से हो जाएगा, योटा होगा नहीं होगा, कितना प्रिपेरेबल है, वो सब ऑप्शन एनालिसिस से डील हो जाता है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द कंट्रीज इन न्यूज, ठीक है।
तो एक्स्ट्राडिशन वाला देखना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखना है। अच्छा हाँ, अब नेवल एक्सरसाइज की जो बात हो रही थी फिलीपींस के साथ, वो क्या है, क्या उसका सिग्निफिकेंस, मतलब व्हाट इज दैट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट नेवल एक्सरसाइज? पूजा। So it is conducted between the two countries for the first time. हाँ, पहली बार हुआ है नेवल एक्सरसाइज, और कहाँ हुई है ये? रसूल। साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में, ठीक है। बस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगर एसटी कोटा, शेड्यूल ट्राइब कोटा बढ़ाना है किसी स्टेट असेंबली पे में, तो बिल कहाँ पास होगा इसका? स्टेट असेंबली ही करेगी या समवेयर एल्स? अक्षय। The Lok Sabha had recently passed the ST quota bill for Goa states. लोकसभा ने अभी पास किया था गोवा का, ठीक है, तो लोकसभा पास करती है। बाकी जब कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट करोगे तो ये इस टाइप का इंफॉर्मेशन देख लेना, किसको जरूरत होती है तो कहाँ पे किस टाइप की चीज कहाँ पास होती है। स्कंद। I mean, I don't know the nitty-gritty so much, but Goa के लिए तो I think it's because of the UT, no? That's why it's central parliament that passed. इसको बेयर एक्ट में कंफर्म कर लेना। वी हैव एविडेंस ऑफ जस्ट गोवा राइट नाउ। बेयर एक्ट में सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले टॉपिक में ये मिल जाएगा डिटेल, ठीक है। सो एवरीवन जस्ट कंफर्म। सर हाँ, स्कंद सेड गोवा इज अ यूटी। स्कंद यही बोला था ना? हाँ सर, एक्चुअली मैंने यही बोला था। गोवा इज नॉट अ यूटी, गोवा इज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा ओके, सो कंफर्म, कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेना इसको। हमारा ये जो हेडिंग्स होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, इनसे हम बहुत ज्यादा मतलब क्लियर कट डिराइव नहीं कर सकते चीजों को। बस एग्जाम्पल है, वो एविडेंस है, बाकी अपना इंस्पिरेशन लेके और चैप्टर मतलब एक्चुअल बेयर एक्ट में तुमको देखना पड़ेगा डिटेल। दैट्स इट। ओके। अब ये उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आ गया, कहाँ आया, किस रिवर में? अनिकेत। सर खीर गंगा। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? सर गंगा की होनी चाहिए, नाम से तो ऐसा लग रहा है। ये तो स्टूपिडली सिंपल हो जाएगा ये स्टेटमेंट तो। सृष्टि। सर अलकनंदा के ट्रिब्यूटरी। अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। That's it in this week's oral test.